क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आई थिंक क्या नहीं करना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा. एंड देन we'll have few questions that I received from students. We'll go through those questions अगर वो cover नहीं हुए हैं. And then after that, if you have particular question जो session में cover ही नहीं हुए, those you can ask. And maybe after session, if you have any particular queries, then we will see. Sounds good, everybody? So we have just 1 hour 15 minutes for you. By 1 o'clock, PS student 11 batch has to go for a break because you have to have your lunch and then your paper. And we will need to batch. Maybe you can stay back and if you have more questions, we can take it. Clear? All good? Chalo. So over to you, Shriya. Thank you. Hello, can you hear me? Okay, so I'm really excited. वो ऐसा celebration का वीडियो देख के nostalgia आ गया. I just hope कि today तुमको बहुत सारी valuable चीज़ें मिले जिससे तुम तुम्हारी preparation को बहुत upgrade कर सको. So I'm so happy you all have a notebook and a pen. So keep noting जो भी काम का तुमको लगता है. So I'll start with a question. I want to ask you कि you are into 2 months of JEE preparation now? 2 months? Yeah. Okay. You're done with 1 or 2 chapters from each subject. So how do you study? What's your day like? कैसे पढ़ते हो अभी? मुझे तुमसे जानना है. Anyone, like you come to class, then घर जाने के बाद क्या करते हो तुम? Anyone, can you tell me? What do you do? There is a lot of homeworks in computer. Okay. And जो सिखाया है मैं revise. Okay. Anything else? You tell me. White T-shirt. घर जाके क्या करते हो? क्या पढ़ के आते हो? जो आंसर नहीं कर रहा है अज्यूम करते हो कि सो जाते हैं, फिर शाम में उठ के टहलते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं और सुबह आते हैं. अगर नहीं तो आंसर है. Yes, come on guys, because if we keep this interactive, it is going to help you. Okay, अगर तुम नहीं बोलोगे तो फिर टफ हो जाएगा. Actually, we'll go with first one. Can you tell me what do you do after going home? What's your schedule like? Like after going home 2 o'clock, I start with my studies. Whatever is done in tuition, I revise and then I solve questions. From where? Which questions? Practice modules. Okay. And LLS, physics and Okay. Okay. Any one of you goes home and analyzes their DPPs? How many of you go and analyze your DPPs? Okay, like about 1/3 of the people. Okay, one last person I'll ask. The cap boy. Can you tell me how's your day like after you go home? Once I go home, I give 1 hour for my lunch and preparing for the first study session. Okay. If I have my first study session, and then I have few time for my hobbies and all. Then there's a second session after my dinner till 11. What do you do in the study session? Basically, what is taught today, the DPP questions, the doubts are noted down, and then my self-study. Okay. I mean, I'm happy with the answers that you gave. So I'll share what exactly I used to do. You can use this. You can use this. Yeah. Next. Okay. So first of all, I called this the blind revision method. इसमें सबसे पहले सपोज कल तुम्हारा केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाया जा रहा है, 3rd chapter. Okay, for JEE they might relate. CET the next chapter is, what's the next chapter? Chemistry. CET के कितने लोग हैं यहाँ पे? CET batch. Okay, do you know what the next chapter is in chemistry? Okay, so let's assume your next chapter is chapter 3, chemistry, classification of elements. You know ma'am is going to start it the next day. The day before, what you can do is either read NCERT for chemistry and your module theory. दोनों में से जो तुमको अच्छा लगता है. Just go through the first 4-5 pages, maybe a half an hour read. Okay, so you have थोड़ा सा आइडिया कि यार कल क्या चलना है, एकदम से गोली ना चले कल. The next day you go to class, you take notes properly, जो मैम पढ़ा रही है, you जो सर पढ़ा रहे हैं. You ensure कि इतने अटेंटिव होने चाहिए तुम क्लास में. सर कभी कभी जो लिखाते हैं लेकिन कभी कभी कुछ
इंपॉर्टेंट भी बोल देते हैं जो वो लिखाते नहीं है. समथिंग दैट स्ट्राइक्स यू, यू हैव टू राइट दैट डाउन बाय योर सेल्फ. हिंदी में लिखो, जो लैंग्वेज तुमको सही लगती है, जो सर ने जिस लैंग्वेज में समझा है. मेक यू नो योर ओन पर्सनलाइज नोट्स. सर जो लिखा रहे वो तो हम लिख ही रहे, हम ऊपर से कुछ खुद से लिख रहे हैं, साइड में कुछ अपना यू नो पर्सनलाइज्ड एलिमेंट टाइप ऑफ लिख रहे हैं. देन आफ्टर यू हैव योर नोट्स रेडी, you have your DPPs for the day. Give your DPPs extremely seriously. I mean, ये एक बात अगर तुमने कर दी, क्लास गए, DPP दिए, घर आए, वापस वो देख लिया, बस 2 साल यही करना है. तुम्हारी जेई में अच्छी रैंक आ जाएगी 100%. 200+ क्वेश्चंस एक वीक में तुमने करने चाहिए. तुमको आइडिया है तुम कितने क्वेश्चंस कर रहे हो पर वीक अभी? कैन यू कैलकुलेट? जैसे वीक के कितने DPPs है? 6 और 7 DPPs पर वीक, करेक्ट? एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस पर DPP? 20 to 25 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस हुए? 150, 120 to 150. सो यू ऑलरेडी डूइंग मेजॉरिटी ऑफ द स्टफ. यहाँ पे तुमको बस खुद से घर जाके कुछ 50 क्वेश्चंस और निपटाने हैं उस वीक के. तुम मॉड्यूल से करो या कोई रेफरेंस बुक से करो. You're already doing majority of the stuff. You're 150 questions तुम इधर सॉल्व करके जा रहे हो. वही अगर ढंग से कर लोगे, बस है. You give your DPP seriously, then you go home, you have your lunch and all. Then जो तुम पढ़ाई पे बैठते हो, ये यहाँ से important है. First thing that I used to do, I used to reread the theory sir used to give. So read theory before a chapter starts. Read NCERT or your modules. Write the class theory properly. Use the ऊपर का छत, the side का area. Use 2 colored pens. Like keep a black and a blue pen so that at least when you refer to those notes before JEE, you're not lost in your own notes. At least use 2 pens. And then write in Hindi. जो भी language तुमको comfortable है. Attempt all the illustrations and questions solved in the class notebook. यहाँ पे कितने लोग हैं जो अगर सर क्वेश्चन कराते क्लास में तो वो अलग नोटबुक में लिखते हैं फिर उसको फेयर करते हैं क्लास नोटबुक में? एनीवन डज दैट? डोंट डू दैट. सपोज यू राइट अ क्वेश्चन, यू गेट इट रॉन्ग, यू कट इट एंड देन राइट सर सोल्यूशन. एटलीस्ट तुमको पता तो होगा कहाँ गलती की अपन ने. डोंट डू दैट एक्स्ट्रा वर्क. बाद में इट्स गोइंग टू गेट वेरी टफ. कंप्लीट योर DPP विथ utmost honesty. Analyze your DPP after going home. How many of you analyze your DPP? I saw quite a lot of hands. ठीक है, अब तुम बताओ एनालिसिस मतलब तुम क्या करते हो? क्या करते हो एनालिसिस में? Anyone? कोई क्वेश्चन अगर सही आया है तो क्या उसकी एनालिसिस है? कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो उसकी क्या एनालिसिस है? यहाँ से मुझे हाथ दिखे. You guys analyze your DPPs. What do you do? Anyone can stand up. Yes. हाँ, okay. ठीक है. Okay. So see, I'll tell you how that's correct. बट समझो मैंने मेरी DPP खोली, आज फिजिक्स की DPP थी, घर जाके मैंने खोली. सपोज मेरे 20 में से 15 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, 13 करेक्ट हुए, 2 इनकरेक्ट हुए. ओके, आई गो होम, मैंने पहला क्वेश्चन खोला, सही हुआ, 2 मिनट के अंदर किया, बढ़िया, सोल्यूशन देख लिया, हाँ ऐसे ही किया. ऑफकोर्स तुमको याद है क्योंकि तुमने सुबह ही वो सॉल्व किया क्वेश्चन. यू गो, यू सी द सोल्यूशन, आई डिड वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन सही किया लेकिन 8 मिनट लिए. 8 मिनट क्यों लिए? यू गो थ्रू दैट. क्या मैंने स्टार्ट में ये 8 मिनट दे दिए कि मैंने लास्ट में दिए 8 मिनट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन JEE दैट यू चूज द ईजी एंड डूएबल क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्वेश्चन सेट. तुम जब फुल लेंथ पेपर देते हो 75 क्वेश्चंस का या CET वाले जो तुम्हारा फुल पेपर देते हो, यू हैव टू फाइंड द ईजी एंड डूएबल क्वेश्चंस. ओके, तो तुमने वो 8 मिनट वो क्वेश्चन को क्यों दिए? स्टार्ट में ही टाइम वेस्ट कर दिया कि लास्ट में टाइम वेस्ट किया? और इतना टाइम गया कहाँ पे? दैट्स योर एनालिसिस फॉर दिस क्वेश्चन. सही हुआ तो भी, सपोज अगला क्वेश्चन गए, वो गलत हुआ, इनकरेक्ट हुआ, कितनी देर में हुआ? 6 मिनट में हुआ. 6 मिनट भी गए, 5 मार्क भी गए. सो यू एनालाइज वेर यू वेंट रॉन्ग, यू सी द सोल्यूशन.
अगला क्वेश्चन, यार ये तो सपोज वापस गलत हुआ ये वाला, और तुमको सोल्यूशन देखते देखते समझा कि यार इसमें तो कुछ था कि मेरे को नहीं पता थी ये चीज़. यू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, कोई ऐसा कंसेप्ट या कोई नया पैटर्न तुमको मिलता है कि यार ये पहली बार देखा है ऐसे सॉल्व किया हमने. सपोज अब मेरे को चैप्टर्स वगैरह याद नहीं आ रहे, बट कुछ चीज़ जो नहीं तुमको लगी वो तुम तुम्हारे नोटबुक में लिख दो. द क्वेश्चन, द आंसर एंड स्मॉल लिटिल नोट कि तुम्हारा क्या गलत हुआ, क्या क्लिक नहीं हुआ. ओके, दैट्स हाउ यू एनालाइज योर DPPs. Next, after you're done with that, you reread the theory and solve your module questions. Sir ने suppose अभी structure of atom हुआ, so you go home, flip through your notes. Sir ने आज क्या लिखाया? अच्छा, थॉमसन का मॉडल लिखाया, डाल्टन का लिखाया, उसके बाद रदरफोर्ड का कराया, फिर उसके ड्रॉबैक्स लिखाया सर ने, उसके बाद प्लैंक मॉडल थियोरी कराई, उसके बाद बोर मॉडल कराई. बोर मॉडल में ये 6 पॉइंट्स थे. गो थ्रू योर थियोरी अगेन एंड अगेन. तुम जितनी बार उसको वापस दिमाग में लेके आओगे ना, उतना तुमको ज़्यादा देर तक याद रहेगा वो. सो यू गो थ्रू योर थियोरी वंस अगेन आफ्टर यू गो होम, एंड देन सॉल्व योर मॉड्यूल क्वेश्चंस. वो जो 50 क्वेश्चंस बच जा रहे हैं उस वीक के टू कंप्लीट द 200 क्वेश्चन टारगेट, उसके लिए तुम मॉड्यूल से देखो या रेफरेंस बुक से, जो भी तुम यूज़ करते हो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. एंड देन यू हैव टू डू दिस होल साइकिल फॉर 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे. समझ आ रहा है अब? इज इट क्लियर? ओके, नाउ डे 2. पहला दिन हुआ, सुबह पहले दिन शायद NCERT पढ़ ली, घर आए, सर के नोट्स वगैरह लिख के लिए, DPP की, घर जाके DPP का एनालिसिस किया, वापस थियोरी पढ़ी, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस किए, एंड देन यू डू दिस फॉर 2 सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट डे वापस तुम क्लास में आते हो, उसकी थियोरी लिखी. द ब्लाइंड डे 1 नोट्स का ब्लाइंड रिविजन. सपोज ये तुमने साइकिल 3-4 दिन के लिए किया. सेकेंड डे तुम वापस आए क्लास, तुमने नोट्स सर के लिखाए, DPP के एनालाइज की, यू डिड द होल प्रोसेस अगेन फॉर 2-3 डेज. अब तीसरे दिन क्या करना है? एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेना है. ये बहुत हेल्पफुल है. और तुमने 3 दिन में तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो जो याद आ रहा है उसको लिखते जाओ ऑन द शीट ऑफ पेपर. नोटबुक बंद कर दो और रिट्रीव करने की कोशिश करो दिमाग में से कि हाँ, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये ऐसे था, फिर मैंने मेरे नोट्स में ऐसे लिखा था. विजुअलाइज योर नोटबुक एंड ट्राई टू रिट्रीव इट फ्रॉम योर माइंड. ओके, एंड देन यू कैन कीप डूइंग दिस फॉर 3-4 days की इंटरवल पे. दिस इज हाउ योर डे शुड लुक लाइक. इज इट क्लियर? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? ओके, सो दिस इज कॉल्ड द फॉरगेटिंग कर्व. जैसे मैं बोल रही थी कि पहले दिन तुमने पढ़ा, तुम 50% भूल जाओगे 1-2 दिन में, लेकिन अगर तुम वापस ब्लाइंड रिविजन करोगे, उसकी वापस याद करोगे, देन योर अबिलिटी टू कीप इट इन योर माइंड इंक्रीजेज. तुम वापस उसको पढ़ते जाओगे ना, ज़्यादा याद होते जाएगा. एंड देन फिर मेंस के पहले तुमने एक बार नज़र घुमा ली तो सब दिमाग में रहेगा. It's very wrong to revise a certain chapter after an interval of 6 months. वैसे याद नहीं रहेगा तुमको. You'll be lost again and you'll have to start from zero for that chapter. So एक fixed interval के बाद बार उसको याद देखते जाओ. Okay, next thing, what I used to do is I used Excel. How many of you use Excel or to-do lists to track? No one? You do? Anyone else? Do you use Excel or write it down in your notebook? You use to-do lists? Okay, so I think you need to start doing that because जैसे pile up होती जाएंगी चीज़ें, it's difficult to track कि मेरा क्या क्या रह गया है. मैं पूरे वीक का मेरा to-do list लिखती थी. Suppose Monday, alcohol, phenol, ether, 46 years questions. Amines, NCERT left to do. DPP analysis done till complex DPP. Last 8 questions left. P block NCERT. MEC, EMI questions. Gaseous state. Equilibrium advanced PYQs. तो ऐसे तुम ट्रैक रखोगे तो it's going to be very easy for you कि कितना अपना डेडलाइन के पहले पूरा हो रहा है. You have weekly tests, right? So you have to keep a track कि अगर मेगा टेस्ट है, अभी तक मेगा टेस्ट I don't think we Only they have fewer computers and other branches have been Mega test. for all the syllabus, like 2 to
chapters completed, vector, dimension, structure of atoms and some basic concept, and maths, Vigno is just started and famous. Right? So, have you? Vigno, it's a relation. Yeah. So my first or second mega test you can say will be there, or you can say it is the first mega test. We are combining all the syllabus for all 11th standard, and they'll be getting first mega test. So, how prepared are you? What's your strategy for the paper? पूरा syllabus पढ़ के आए हो कि नहीं? पढ़ा है, okay. So, after a few mega tests जब 3-3, 4-4 chapters आएंगे per subject, तब track करना मुश्किल है. इसलिए start using Excel और तुम्हारे notebook में लिखो anyway. But you have to track it like this, okay? Yeah, because Excel I believe helps a lot because you can keep the track and you can keep changing. Textbook and notebook में करोगे तो again you have to go back, scroll those pages, and then again rewrite it. तो अगर feasible है, laptop है, अगर parents का भी laptop है, but for few Hours, 30 minutes. After going home, even if you update it for the day, it's okay, na? Okay. Now you've understood कि दिन में क्या क्या करना चाहिए और वीक में कैसे कैसे करना चाहिए. अब मुझे तुमको ये पूछना है कि जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन सबका हुआ है यहाँ पे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस. ओके, आई वांट टू आस्क यू कि तुमने उस चैप्टर के लिए क्या क्या रिसोर्सेज या क्या क्या फ्लो यूज किया. व्हाट ऑल डिड यू डू फॉर दैट चैप्टर? एक एक मेरे को बोलते जाओ. क्या चीज़ की यूनिट एंड डायमेंशन के लिए क्या यूज किया? क्लास नोट्स. ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल्स. नेक्स्ट सिर्फ मॉड्यूल्स यूज किया. ओके, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट. ओके, ओके, सो यू आर प्रीटी मच ऑन द राइट ट्रैक. मैं क्या करती थी, आई यूज टू मेक समथिंग लाइक दिस अगेन इन एन एक्सेल, और या फिर तुम अगर इसका प्रिंट लेके तुम्हारे वॉल्स पे लगा सकते हो तो देखो. बेसिकली देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू फॉर एवरी चैप्टर. ऐसे नहीं कि एक के लिए मॉड्यूल किया, एक के लिए नहीं किया, एक के लिए कोई रेफरेंस बुक की, दूसरे के लिए नहीं की, एक के लिए डीपीपी एनालाइज कर ली सारी, एक चैप्टर के लिए डीपीपी एनालाइज ही नहीं की. सो रैंडम करोगे तो रैंडम पढ़ाई चलेगी. एक स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो तुमको भी एक डायरेक्शन आएगा कि क्या कंप्लीट करना है. सो फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक स्ट्रक्चर ये चैप्टर है. मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन कॉलम्स डाले हैं. फर्स्ट इज मॉड्यूल थियोरी और एनसीईआरटी. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू फॉर दैट चैप्टर. जब भी वो हो गया मैंने उस सेल को ग्रीन कलर कर दिया. नेक्स्ट थिंग लेक्चर नोट्स, सर के नोट्स, क्या वो पूरे बैठ गए हैं दिमाग में. नेक्स्ट थिंग इज मॉड्यूल क्वेश्चंस, कुछ 50 to 60 क्वेश्चंस जो मुझे करने थे, क्या वो कंप्लीटेड है उस चैप्टर के. नेक्स्ट इज मेंस के PYQs. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव done mains के PYQs for units dimension? Let's say mains PYQs और CET PYQs. थोड़ा ऊपर करो, किया है तो ऊपर करो. बिंदास क्या है, किया है ना. कितने किए? How many did you attempt? How many PYQs? 50? 50. Okay. और किसने हाथ ऊपर किया? कितने किए? मैम ने क्लास में करवा दिया सब मजे से. But how many? How many did you? सारे. Do you know how many PYQs there are of units and dimensions? जितने क्वेश्चन से होते. But how many? I want a number. अरे 1 2 3 4 तो लिखा होगा ना. कितने किए? 20 30. Okay. CET PYQs. Okay. Anyone else जिसने मेंस के PYQs किए? How many did you do? नहीं किए. नहीं किए. So that's a very critical point in your preparation right now. You have to do 50 to 60 PYQs of that chapter. जो तुम मॉड्यूल के क्वेश्चंस बोल रहे हो, after you're done with some module questions, go to the PYQs. यार कितने क्वेश्चंस है मॉड्यूल में PYQ के. मेंस के तो करने चाहिए, मैं एडवांस के भी बोल रही हूँ. After you have completed first 10 years एडवांस की PYQs और CET के PYQs,
10 साल के वो करने हैं और मेंस के कुछ 5 साल के करने हैं. डोंट वरी, अगर तुम्हारे अभी कवर नहीं हुए 5 साल के मेंस के PYQs, वो रैंक बूस्टर में कवर हो जाएंगे. डू यू नो व्हाट रैंक बूस्टर इज? Don't know now. Okay, I'll tell you about it later. But try to cover as many PYQs as you can. And वो सबसे मेन बात है. तुम घर जा रहे हो, वापस थियोरी पढ़ रहे हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम मेंस के क्वेश्चंस उठा के करो. एटलीस्ट जब एटलीस्ट 3/4 of the chapter is done, you have to start picking up PYQs. And for PYQs, you can use the module. Module has mains PYQs, or there's an app called Marks app. Anyone knows of it? Anyone has heard of it? We mentioned that during orientation itself, they should install Marks app and start. Marks app. Marks, MARK. KS. मतलब ओरिएंटेशन में बोला था तभी भी नहीं किसी ने एक्सप्लोर किया. You use it? Do you solve on it or you had it? Okay. Anyone else? Okay. So if you want to solve PYQs on an online platform, then you can go for Marks app. उसमें सारे PYQs है, chapter wise वगैरह भी है. That's a good resource. Next is short notes. Now, how many of you have made short notes of any particular chapter? Which chapter? Okay. You've made notes? Physics and chemistry and Short notes. all the formulas and examples of solution. Okay, okay. Over there I saw hands. You make short notes? Which chapters have you made? Okay. कितने पेज के हैं? एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कितने लॉन्ग है? 10 पेज. ओके. सो मेकिंग शॉर्ट नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं बनाते हो तो यू शुड स्टार्ट. रीज़न बीइंग, अब तुम्हारा मेरे को बताओ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, कितने पेज में है वो तुम्हारे नोटबुक में? हाउ मेनी पेजेस हैव यू यूज्ड फॉर दैट चैप्टर? Half a book. Okay. Do you know there are 90 chapters total? 30 physics, 30 chemistry, 30 maths. You're going to read half a book for every chapter in the end. You have 15 days to revise before JEE Mains first attempt. Are you going to revise half a book for every chapter, 90 chapters? So you have to start making short notes. अगर तुम्हारे पहले से ही notes प्रॉपर है, पढ़ने जैसे है, then you can make a formula sheet, right? You have to start making those. Okay. So the next column is of short notes. Then I've kept 3 columns for revision. उसकी कितनी बार revision मेरी हो चुकी है? Revision means suppose तुम्हारा मेगा टेस्ट है, उसमें पहले का चैप्टर आ रहा है, तो मैं उसकी थ्योरी पढ़ ली, पेपर में उसके क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर दिए, एनालाइज कर दिए. That's one revision. And then other reference books if you have used, you can add comments कि कौन सी यूज़ की, उस चैप्टर की सारी DPPs एनालाइज है कि नहीं, एंड वीक पार्ट्स / लेफ्ट टू डू एंड अ रिमार्क. तुमको समझ रहा है ये क्या है? ये एक चैप्टर का फ्लो है जो तुमको करना है हर चैप्टर के लिए. अंडरस्टूड? I think everybody will note down these columns because that will help. 11th में आने के बाद ना सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट का ये होता है कि ना क्या क्या करें, एंड सेकेंड इज कहाँ से करें. करेक्ट? क्या क्या करना है और कहाँ से करना है, बिकॉज टिल 10th यू हैव ओनली वन टेक्स्ट बुक. उसी में क्या करना है? स्कूल के क्वेश्चन आंसर या क्लास के क्वेश्चन आंसर्स डन. करेक्ट? साइंस में इसके अलावा कुछ किया था? ऑलमोस्ट नॉट, राइट? लाइक 5% लोगों ने लपीट सीन और ये वो किया होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं. बट इन 11th 12th जर्नी, this is how you should be tracking every chapter. And once you're done with all of this, then you can see कि okay, ये चैप्टर मेरा काफी अच्छा रेडी हुआ है. When I say काफी अच्छा, it's 75%. जब ये सारा हो जाता है, और जब 100% होगा तो that is different. That will get, I think we might explain further parts. ठीक है? Any doubt in the flow? I think this is fantastic. This is fantastic because every Otherwise, after 6 months, you have no idea कि atomic structure के कितने mains के PYQs किए. Do you have a count?
अभी नहीं है. How are you going to remember कि यार इसके किए कि नहीं questions? स्पीड इज ओके, आर यू गाइस फॉलोइंग इट कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है, समझ रहा है क्यों बोल रही है, किस लिए बोल रही है, क्या ज़रूरत है इसकी, यू आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस की क्यों ज़रूरत है करके. इफ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस देन ओनली यू विल फॉलो कि हाँ ऐसे ऐसे करना है. सो syllabus is huge, like 90 chapters are there, so if you go structured way, 10th में ऐसा नहीं था कि 10 चैप्टर थे तो हो गया, पढ़ लिया, 2 दिन का गैप है, डन. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 90 चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए भी 15 दिन लगेंगे तुम्हें लास्ट मोमेंट पे. तो जो तुम्हारा अप्रोच रहना चाहिए, यू शुड बी स्ट्रक्चर्ड, हैप्पीजार्ड नहीं कि मैं जितना पढ़ना पढ़ लिया और फिर बाद में देखेंगे जो होगा वो होगा. If you follow structured approach from the beginning, कितना पढ़ा है, कितना बचा है, किसमें से क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना बाकी है. If you do it, whether it's your some separate register, उसमें मेंटेन करना है वैसे करो. कोई तुम्हारे पास टैबलेट, मोबाइल या एक्सेल है उसमें मेंटेन करना है, मेंटेन इट. बट ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि भाई जितना पढ़ा उतना पढ़ा, पढ़ के कुछ तो पढ़ के जाते आधा इधर पढ़ा आधा इधर पढ़ना है. It has to be a structured approach on everything you do. Discipline and consistency will matter. Okay. तो वो क्या बोल रही है, try to understand, नहीं आता है तो raise hand, stop her and ask her कि why we should do this. That is important. समझ लो, because इनके बैच के वक्त भी ऐसा कोई नहीं था जो इतना granular level पे जाके बताए. They have explored on their own, they formed their own structured way of doing things. You are getting it ready made, so note it down everything. नहीं समझ में आ रहा तो भी लिख लो, then afterward you can ask the question. It's really important. बाद में ऐसा सेशन फिर से नहीं होगा, so make full use of it. And also अगर एक्सेल नहीं है हैंडी तो एक बार का बना लो, प्रिंट लेके दीवार वगैरह पे लगा लो. तुम रोज घर जाके यू कैन टिक इट या उस पर कमेंट लिख सकते हो ना, दीवार पे इसका प्रिंट ले लो हर तीनों के लिए, PCM, stick it on your wall and keep a track of it. And also one more important thing, how many of you have seen the JEE Mains or CET official syllabus, the official document? Okay, one person. So ma'am, I think we have shared the so I want you all to go home, go and check for JEE Mains official syllabus. कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उसका सिलेबस सामने होना चाहिए. प्रिंट ले लो, दीवार पे चिपका लो उसको या फिर हैंडी रखो. जैसे जैसे एक एक चैप्टर होते जाएंगे टिक मारते जाओ, एटलीस्ट समझेगा इतने बड़े समुंदर में कितना अपने हाथ में आया है अभी तक. Alright, and check whether every subtopic is done, covered by you. Okay. If you want to write this down, you can do this flow. If any of you want to write. Should I go ahead? Yeah, you can take a picture if you want. Don't have phones, okay. Phones are banned. But you have to start with mains and CET PYQs. Yeah, that's the basic thing for any chapter. Yes. Every questions from DPP module, every PYQs. Sorry? Every PYQs which is your module. Yeah. You used to solve every. Not in the first go. There are a lot of questions in the module, like more than 100 PYQ questions. So, like I said, you have to complete 50 questions on your own. जो DPP में हो रहा है वो 150 हो जा रहे हैं तुम्हारे. 50 to 60 questions एक चैप्टर के तुमको निपटाने. तो you can tick it in your module. पहले suppose तुमने मेंस खोला, मेंस का सेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एटम की PYQs खोले मॉड्यूल में.
यू सॉल्व 1 to 25 वन डे, तुम टिक कर दो. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर उसमें से तुमको कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है देन मार्क इट, हाईलाइटर यूज़ करो, उधर ही मार्क करो, because you can't solve those 25 questions again, right? This is the last time you're solving those questions. और उसमें से कुछ अगर अच्छा लगता है तो वो नोटबुक में लिखो, अगर मिड लग रहा है तो देन मार्क इट ओवर देयर विद अ डिफरेंट पेन और यूज़ अ हाईलाइटर. एंड 25 क्वेश्चन समझो मेरे आज हुए हैं, 3 दिन के बाद मैंने रेस्ट 25 क्वेश्चंस किए. आई थिंक एट दिस स्टेज 50 PYQs फॉर एवरी चैप्टर इज इनफ. And DPPs तो you are solving, so I think for one chapter that much is enough. So let's go ahead. This is the study flow जो यहाँ पे लिखा था. Next thing, ये पता नहीं if you will use it right now, but I'm giving you an idea of what this is. Basically जब तुम्हारा syllabus कुछ हद तक हो जाएगा, मैंने ऐसे sheets बनाए थे. A- is basically the column of the chapters जो जिसकी तुम्हारी NCERT भी नहीं हो पा रही है. Like a chapter which is very weak, you put it in A-. A is the category जिसके अगर मैंने तुमको 10 मेंस की PYQs दिए तो तुम उसमें से 7 सही कर दोगे. That's a chapter which is in A. And A+ is a chapter जिसके अगर मैं तुमको 10 एडवांस की PYQs दूँ तो तुम उसमें के 5 अटेम्प्ट कर सको. Like you know कि कहाँ जाना है, सही आना नहीं आना वो बात की बात है, बट एटलीस्ट तुमको पता है कि यार हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है. दैट इज अ चैप्टर विच इज इन A+. तो कभी कभी लोग पूछते कि इफ इन अ टेस्ट तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे बट यू डोंट नो विच चैप्टर इज ईटिंग योर मार्क्स, सो दिस इज अ गुड वे टू ट्रैक कि भाई कितने पानी में कौन सा चैप्टर है. अब मेंस जितने पास आएगा या एडवांस जितना पास आएगा तुमको काम करना है तुम्हारे A और A+ वाले चैप्टर्स पे. यू सपोज तुम्हारा A- में रोटेशनल मोशन चैप्टर है. दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड मैकेनिक्स जो कि बहुत बड़ा है. अगर वो तुम्हारा A- में है कि नहीं आ रहा है यार, उसकी NCERT भी नहीं हो पा रही है, तो देन यू कांट पिक दैट अप इन December, 1 month बिफोर JEE Mains. यू हैव टू लीव इट. अगर तुमने समझो सितंबर में वो चैप्टर उठाया जो A- पे है, तुमको शिफ्ट करना है उसको A में. समझ पा रहे हो कि उसकी थियोरी पढ़ी, उसके कुछ क्वेश्चंस किए और उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते जाना है. बेसिकली दिस इज अ वे टू ट्रैक तुम्हारा कौन सा चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग है. मे बी यू वॉन्ट यूज इट नाउ बट आफ्टर सम टाइम. Especially 12, and you need to make sure A- में minimum chapter है. तो ऐसा कि A- में ही सभी बैठे हैं, तो there is no use. Okay, next thing I want to go is towards the notes making process. I'll talk about 4 things: how I made short notes, how I made forgetting sheets, how I made my error log, and the test analysis sheets. Okay, I'll explain each one of them. First is the short notes. I want to show you my structure of atoms short notes. मिनिमाइज करके करना पड़ेगा. आगे का देख के ओके, मे बी आई शो यू द शॉर्ट नोट्स आफ्टर अ वाइल. पहली चीज़ जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो मेरा टेक्स्ट नोटबुक में कुछ 50 to 60 पेजेस का था. मैंने उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया उस चैप्टर के 1-2 वीक के बाद. समझ रहे हो, मैंने सर के नोट्स लिखे, जो अच्छे क्वेश्चंस थे उसके नोट किए वही नोटबुक में, क्लास नोटबुक में. फिर 1-2 वीक के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाए. शॉर्ट नोट्स में मैंने उसकी थोड़ी थियोरी, फॉर्मूलाज, जो चीज़ें मैं भूलती हूँ, और 1-2 जो अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे, जो मेंस के एडवांस के क्वेश्चंस है, जो तुमको लगता है कि यार कुछ नया है, लिख के रखना चाहिए, वो भी मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखे थे. तो आई थिंक कैन यू गो टू पेज 35. So this is structure of atom. Okay. So this is what I was talking about कि use the space.
तुमने एनसीईआरटी में कुछ पढ़ा, ये चीज़ें एनसीईआरटी में रहती है। जे थॉमसन, द कैनल रे, कुछ सुना हुआ लग रहा है, चैडविक, this is all in NCERT. So I wrote it after I had written these notes. Dalton atomic model, Thomson model, Rutherford, उसकी theory, distance of closest approach, electrostatic potential, Rutherford के drawbacks, Planck's quantum theory, फिर 20 into 10 to the power minus 26. याद है कि नहीं अभी भी? All of these conversions that Sanjay sir tells you or even Rajni ma'am tells you, these are very important. तुम बार बार ये कैलकुलेट नहीं कर सकते HC की वैल्यू। ये क्या है पता है क्या? Do you know what this is? This is basically the value of HC. This is a question जो सर ने क्लास में कराया था, जो अच्छा लगा, मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा है। दिस इज बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके 5-6 पॉस्टुलेट है, वो शॉर्ट में लिखे हैं। अब यूज डायग्राम्स, फिर ये रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के फॉर्मूला। कुछ याद आ रहा है? यू डिड दिस चैप्टर राइट? करेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी, राइटबर्ग्स कांस्टेंट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये डू यू ऑल नो? 13.6, 3.4, 1.51, उसके बाद 0.85, देन 0.54, देन ओके। सो तुम जब ब्लाइंड रिविजन करते हो या सर के नोट्स देखते हो तो वो दैट विल गेट सेट इन योर ब्रेन। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज क्वांटम वाला पार्ट। ये हुआ अभी तक? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके शॉर्ट में टेबल बना दिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, all 4 in just 2 pages. That's all you have to read before mains. आई होप इससे आइडिया आ रहा होगा। ये 3 लोग, अफबाउ, पॉली, हंट्स, करेक्ट। देन ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, S, P, D. They haven't reached there. So I mean, I've just put this to give you a little bit of idea. और लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, मेंस के और एडवांस के या फिर मॉड्यूल के, जो मुझे अच्छे लगे हैं और जो नोट्स में लिखने की ज़रूरत थी वो। सो आई थिंक कुछ 15 to 20 पेजेस में ये चैप्टर फिट हो गया था। सो आई होप शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट क्लियर है। अगर तुम्हारा अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ टुडे, देन आई थिंक आफ्टर 1 or 2 weeks यू कैन स्टार्ट मेकिंग इट, क्योंकि तब तक कुछ थोड़ी आइडिया आ जाती है कि भाई ये चैप्टर कैसा है। मेंस के थोड़े PYQs करने के बाद थोड़ा आइडिया रहता है कि हाउ एग्जैक्टली द चैप्टर इज एंड व्हाट एग्जैक्टली दे आस्क। नेक्स्ट थिंग, दिस इज द 1-page समरी नोट्स, और आई यूज्ड टू कॉल इट माई शीट्स। तो ये और सिंप्लीफाइड वर्जन है नोट्स का। ये मैंने 12th के सितंबर में बनाया था कुछ चैप्टर्स के लिए, जिनकी मैं चीज़ें भूल रही थी। सो इट जस्ट कंटेन्स दोज थिंग्स दैट आई टेंड टू फॉरगेट एंड मे बी सम गुड इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे सम ऑफ यू आर डन विद सीक्वेंस सीरीज राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर डन विद सीक्वेंस सीरीज? ओके, सो सी ये summation of, can you see this? Summation of r, summation of r square, summation of r cube, then AP, HP, GP, कुछ questions का you know the starting point I've written कि अगर ऐसा है तो how do you manipulate it into this? That I've written in this. The next one I'll show you for vectors and units dimension. So ये देखो, can you see this? If theta is 60, theta is 120, delta V 2V sin theta by 2, 2V cos theta by 2.
फिर म्यू, एप्सिलॉन नॉट, एल, कैपेसिटेंस, जिनके डायमेंशंस बहुत गंदे रहते हैं. सो मैंने 2-3 ही याद करे. यू डोंट हैव टू रिमेंबर सी का, एल का, आर का, सबके मत याद करो. 2-3 पकड़ो जो इजी है. जैसे एल का बहुत इजी था, इट इज एम L2 T-2 A-2, एंड फिर उससे मैंने डिराइव किया. डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ देम बिकॉज यू कांट, यू ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम. मतलब यूनिट्स डायमेंशन इज डन ना. सो एल के, सी के, इनके कुछ मैंने लिख के रखे थे कि मे बी एवरी नाइट आफ्टर आई एम डन विथ माई डे आई कैन जस्ट रीड थ्रू 2 or 3 शीट्स, ताकि वो दिमाग में बैठा रहे. Then These are most useful. most used. Most useful. I mean, it is not easy to create this either. क्योंकि तुम्हें पूरे चैप्टर का पहले तो क्रक्स आने चाहिए ना कि ये चैप्टर में है क्या, तब तुम एक पेज में पूरा चैप्टर बिठा सकते हो. और ऐसे बिठाना है कि उसमें का कुछ भी चैप्टर का कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए. And believe me, before JEE paper, before NEET exam or before CET, you could revise every chapter in, I would say, 30 minutes. 15 minutes. 15 to 30 minutes. So you can revise entire syllabus in 2 days. So imagine you have an actual JEE paper on Monday, and you're sitting today. 90 चैप्टर रिवाइज करने एक बार सब देख लेते हैं. कैसे देखोगे? So it takes a lot of efforts. Okay, believe me, it's not easy, but you need to train yourself because only you can understand and you can make your own short notes for this forgetting shit. किसी और की तुम ले लोगे ना तो उसका यूज नहीं होगा because everybody has their own. When she is explaining, you might feel हाँ है, but ये कितना कैसे लिखा है. But for her, in sleep also, I think she can revise the chapter. Basically, तुम जितने एग्जाम हो सकता है कि यू माइट नॉट बी एबल टू मेक इट राइट नाउ बिकॉज इतना एक्सपीरियंस नहीं है तुमको उस चैप्टर के साथ, उन क्वेश्चंस के साथ. जैसे जैसे तुम सितंबर की ओर बढ़ोगे, 12th स्टैंडर्ड सितंबर, दैट्स द टाइम यू कैन स्टार्ट मेकिंग दीज कि यार अब मुझे वो नेक्स्ट ईयर. यस, Next year, September, you will be able to make such sheets for 11 and remaining 12 chapters. Because next year, September will be done with the syllabus. And that time you will get the maturity to create. Understand? Now you can try creating at least short notes. Short notes तुम बना सकते हो क्योंकि long notes हैं, वो बार-बार तुम रिवाइज कर रहे हो. मुझे नहीं लगता अभी भी यूनिट डायमेंशन में तुम्हें इतनी मैच्योरिटी आई है कि तुम शॉर्ट नोट्स बना पाओ. May not get there by August, September, yes. But as per her flow, as you are going with the chapter, before next chapter get to the peak level, you should complete short notes. Correct? correct. So this is just to show you, you need to create this for future reference. Maybe जितना जल्दी तुम्हें लगे कि हाँ ये चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग हो गया, यू कैन क्रिएट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू डोंट नीड टू वेट टिल एंड ऑफ 12th का सिलेबस. यू कैन स्टार्ट एंड ऑफ 11th आल्सो. Jan-Feb में भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर 100% श्योर कि इसके बाहर चैप्टर में कुछ नहीं है. Otherwise, मतलब तुमने इस चैप्टर का सब कुछ पढ़ लिया है, भरपूर क्वेश्चंस कर लिए हैं और तुमको पता है इस शीट के बाहर कुछ आएगा नहीं, देन यू कैन मेक इट. एंड व्हेन यू सेड कि मेंस के PYQs नहीं कर रहे, ब्रो स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज तुम जब तक तुमको मालूम ही नहीं कि वो पूछते क्या है, तुमको कैसे मालूम वो क्या पूछ रहे हैं. यूनिट डायमेंशन में क्या पूछते हैं वो मेंस में, हाउ डू यू नो इफ यू डोंट सॉल्व इट. फिर तुम बनाओगे ना शॉर्ट नोट्स, सर ने जो लिख के दिया उसको छोटे में नहीं करना है, जो उसमें का क्रक्स है जो इम्पोर्टेंट है वो लिख के लेना है, जो मेंस में तुमको लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प करेगा. सो दिस वाज द फॉरगेटिंग शीट्स. अगला है एरर लॉग्स. दिस माइट नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू राइट नाउ. ये एग्जैक्टली क्या है मैं समझाती हूँ. सपोज सितंबर में शुड आई इंट्रोड्यूस देम टू रैंक बूस्टर. Yeah, you can, but I think you can go ahead with the other things that you have, or you can brief them about. Okay. It. That's fine. So
एरर लॉग्स बेसिकली कोई भी चैप्टर की जो गलतियां है मेरी या जो अच्छे क्वेश्चंस है वो मैंने प्रिंट करके लिए हैं. When you are in 11th and 12th, you find a good question, you can write it down in your notebook, right? 2-3 क्वेश्चन है DPP में अच्छे दिखे वो लिख के लिए, वो करना ज़रूरी है, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है सॉल्व करने का अगर उसमें क्या अच्छे तुम लिख के नहीं ले रहे हो तो. During rank booster is basically a program that we do at RA in which from September of 12th to December of 12th standard we solve previous year questions of chapter wise previous year questions. So मैंने units and dimensions की उस टाइम पे कुछ 200 क्वेश्चन तब सॉल्व किए 2 दिन में. उसमें के जो मुझे अच्छे लगे या गलत हुए या कुछ अलग पैटर्न था वो मैंने वर्ड में डाला, उसका प्रिंट लिया. एंड मेंस के पहले जब मैं रिवाइज करती थी वो चैप्टर तो आई यूज्ड टू गो थ्रू दिस एरर लॉग. इज इट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? इट्स बेसिकली अ शीट ऑफ ऑल द गुड क्वेश्चंस फ्रॉम अ चैप्टर. कितना लंबा होना चाहिए? अगर मैं बोलूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए तो अबाउट 3 to 4 pages of good questions. Is that clear? And then हर बार जब मैं इसको रिव्यू करती थी I used to give it 1 tick. पहली बार देख लिया, दूसरी बार पूरा देख लिया एंड जो बहुत ही अच्छे उनको हाईलाइट भी कर दिया. So maybe it's not that important right now for you, but you like if you want a way to document the good questions you can use this. या फिर ऐप में एक फीचर भी है to bookmark your questions. Has anyone bookmarked their questions? जो ऐप तुम यूज़ करते हो उसमें there is an option to bookmark your questions. जो अच्छे क्वेश्चन है उसको एक फोल्डर में वो जमा करता है. तो अगर तुमको ऐसा कुछ नहीं बनाना है तो तुम ऑनलाइन ही उस फोल्डर में you can collect it. Well, they can use, I mean, they can start creating error log right now. Yeah, in the app, yes. Or in their Notebook. हाँ. Because there are very less questions to be noted right now, ना. So you can do it in your notebook also. Okay. Next one is the RBT test analysis. ये भी शायद अभी काम नहीं आएगा. Last में जब मेंस के पेपर के हम मॉक दे रहे थे, मतलब JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज अ टेस्ट जब हम दे रहे थे तो 75 क्वेश्चंस दिए, स्कोर आया, परसेंटाइल आई, उसके बाद उस टेस्ट का एनालिसिस भी मैंने डॉक्यूमेंट किया है. सॉरी. See, so I've written those questions or those things that I forgot in that paper and last page पे एक short में मैंने लिख दिया है उस पेपर के बारे में. So जैसे this is a formula from fluid mechanics, this is a concept from thermodynamics, this is from P block, this is from organic. तो जो चीज़ें इस टेस्ट में मेरी छूट गई, गलत हो गई, भूल गई या कुछ हटके थी वो मैंने ऐसे वापस डॉक्यूमेंट किए और इनके प्रिंट लिए और मेरे मेंस के पेपर के पहले आई यूज्ड टू गो थ्रू दिस. सो राइट नाउ अगर तुम्हारे टेस्ट्स होते हैं और तुम उसको एनालाइज करते हो तो हो सकता है तुम नोटबुक में ही लिख लो कि क्या क्वेश्चंस थे जो अलग थे, क्या भूल गए, वो सारा. नॉट नीडेड टू क्रिएट दिस राइट नाउ. But it is must to analyze that paper. So every paper, once you're done with 3-hour paper, ideally how long it should take to analyze the paper? 2 to 3 hours. So 2 to 3 hours to analyze the paper which you give here. After going home, or you can sit back and analyze. How many full papers have you given? 3-hour papers. 4. I think this is the 4th paper, right? 2. Third. This side Third paper. 2 papers. 2. And today is the 3rd paper. How many of you have you analyzed? 2 पेपर किए कुछ कि दे के बस घर. See, there's no point in giving 3 hours in the paper if you're not analyzing it. उससे अच्छा सो जाओ. सही में उससे अच्छा सो जाओ. अगर तुम वापस वो पेपर अगर नहीं देख रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है. तुमको जो आ रहा था पहले अभी भी वही आ रहा है, जो गलत हो रहा है वो अभी भी गलत हो रहा है. अगर तुमने वो वापस देखा ही नहीं, क्या पॉइंट है? तुम वापस 3 महीने बाद वही क्वेश्चन गलत करोगे. डज इट मेक सेंस? इवन आफ्टर योर 1 hour DPP, अगर तुमने
20 में से 15 सही किए, 5 गलत किए, 3 महीने बाद सेम DPP दोगे, 5 क्वेश्चन वो वापस गलत होंगे, क्या पॉइंट है 1 घंटा दे के फिर, अगर वो 5 क्वेश्चन तुम देख नहीं रहे हो, उससे सीख नहीं रहे हो तो. So after today's test, I want all of you to go home, open your 3-hour test. Laptop पे, that would be preferable instead of your mobile. Use your laptop. Go to physics. पहला क्वेश्चन देखा और क्यों पूछो, सही हुआ क्यों, सही कंसेप्ट है, ओके नेक्स्ट. ज़्यादा टाइम लगा क्यों, देन गो थ्रू इट. अगला क्वेश्चन गलत हुआ क्यों, कौन सा कंसेप्ट वीक है यहाँ पे. हो सकता है आई गिव यू वन एग्जाम्पल. सपोज मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों, 2 मिनट में ही किया तभी भी गलत हुआ. क्यों गलत हुआ, इसके पहले क्वेश्चन में 8 मिनट दे दिए थे तो पैनिक हो गया था. पहले वाले क्वेश्चन में 8 मिनट क्यों गए, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं था. जल्दी क्यों नहीं लीव किया वो क्वेश्चन, क्यों उसको 8 मिनट दिया और तब भी गलत किया, क्यों, आस्क क्यों, 8 मिनट क्यों दिए. अगली बार सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको 3 मैक्स मिनट में छोड़ना है. अगर 2 मिनट में क्लिक नहीं हुआ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टुडे व्हेन यू गिव योर पेपर, फिल्टर आउट द इजी क्वेश्चंस. 25 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन इजी ही होंगे, जो डुएबल होंगे, जो तुमने पढ़ा है उसमें के ही होंगे. तुम मेंस के PYQs करोगे उसी पैटर्न पे रहेंगे. फाइंड दोज 15 questions, solve them, and then spend time on the बचे हुए questions. And what is your order? How do you attempt your paper? कितनी देर में सब्जेक्ट बदलते हो या They may not even have started that yet. They Okay. are 11, so 11 to just started. should I tell them? Or? Yeah. Okay. Does anyone like? Can you tell me how do you attempt your paper? Which order or how much time do you spend on a subject? I think they're going physics, chemistry, maths या जो सामने आ रहे हैं वो पहले किया. Right? So कुछ और ज़्यादा टाइम, कितना टाइम? 1.5 hour on maths. In the start or in the end or in the middle? In the end, 1.5 hour. So you complete physics and chemistry in 1.5 hour. Okay. Anyone else? How do you start it? How do you do your paper? chemistry is easy. 1.5 hour maths. Okay. Yes. जो पहले chemistry easy लगता है तो मैं 45 मिनट में chemistry. Okay. Then I give more time for maths. Okay. 1 hour and 15 minutes. Okay. The rest of time for Last में physics. So it is CMP. Okay. Anyone else? How many of you attempted PCM? बाकी लोग कैसे अटेम्प्ट करते फिर? जैसे ही Chemistry, maths, and then physics. How many of you attempted at CMP? Chemistry, maths, physics. बाकी क्या करते हैं फिर, मतलब इंग्लिश करते हो क्या? Chemistry, physics, maths. How do you attempt your paper? Which order? someone said maths first, that group said maths first. Maths, physics, chemistry. Very good. That's a blender. Now you hear. Okay, so I'll tell you how I used to do it and why maths should not go first. अगर तुम्हारा maths धांसू है, 25 के 25 questions आ रहे हैं, then go for it. Otherwise, you can't spend 1.5 hour, first 1.5 hour of the paper doing maths. अब मेरे को बताओ केमिस्ट्री में कितने अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस 25 में से पेपर में? कितने? 17, 18, 20. Rather, you should ask how many correct attempts. Next question है वो. How many? Believe me, this is the strategy that she is explaining. You discover that in the hardest way at the end of 12th. That's like so many students who blunder till end of December. उनको यही नहीं पता होता कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. They are really lucky, I would say. I wish someone had given us all of this Earlier. like this. Okay, so you said 20 to 17 questions physics के, sorry chemistry. Maths में कितने attempt करते हो? 1.5 hour देख के. Below 10, 15. 10, I think 10. Score, total score I'm seeing is average 10 to 12. 10 to 12. You can avoid beyond. Yes, over there. 10 to 15. Okay. So,
I'll tell you what order I used to go with. जैसे ही 3 घंटे का पेपर चालू होता है, अपना काम है सबसे इजी ढूंढ के निकालो, फटाफट फटाफट कट ऑफ क्लियर करो. कट ऑफ इज अबाउट 100 मार्क्स. जल्दी से जल्दी 100 मार्क क्रॉस करने, उसके बाद जितने मिलेंगे वो अपने मेहनत पे है. सो आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विथ केमिस्ट्री. एवरीवन ट्राई दिस इन टुडेज पेपर. Start with chemistry. You have 180 minutes. Till 160 minutes, please write this down. Till 160 to 150 minutes, try to attempt 15 questions of chemistry. Is that clear? So you have 20 minutes. Attempt about 15 to 20 questions of chemistry first. Then from 150 to 120 minutes. ये समझ रहे हैं 150 to 120 ऊपर जो टाइम आता है. 180 to 150 minutes, that's 30 minutes. You can target 15 to 20 questions of chemistry. Then 150 to 120 minutes, that is also 30 minutes. You can attempt 15 to 20 questions of physics. Then next 120 to 60 minutes, that is 1 hour, go for maths. Maths you can aim for 15 to 20 questions. And last 1 hour, you should be moving throughout the paper. Switch sections. फिजिक्स में 2 किए, फिर केमिस्ट्री में गए, केमिस्ट्री में ये 2 आ रहे हैं, फिर मैथ्स में गए, फिर ये 1-2 और आ रहे हैं. जो बच्चे में क्वेश्चन है उसमें फटाफट कैसे अपन निपटा सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन मूव बिटवीन द सेक्शंस. तो लास्ट के 1 घंटे में जो हाथ में आ रहा है, कितने क्वेश्चंस हो गए अपने? 15 फिजिक्स में, 15 केमिस्ट्री में, और समझो 12 मैथ्स में. हाउ मच इज दैट? हाउ मेनी क्वेश्चंस? 42 questions you have attempted. Now your target should be to reach 55. जो लास्ट के ये 8 से 10 क्वेश्चन है, वो हर सेक्शन में से अपने को निकालना है लास्ट 1 घंटे में. Is that clear? Can you repeat what I said? क्या टाइमलाइन है? So this is called attempting the paper in rounds. Rounds. And that's how you can score more marks and attempt more questions. पेपर कैसा भी आए फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज विद द गिवन टाइम यू आर मूविंग इन द पेपर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्टेड विथ मैथ्स, जो करना ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड विथ फिजिक्स, और अगर फिजिक्स बहुत गंदा है तुम्हारे अटेम्प्ट वाले पेपर का, उसको जो शिफ्ट आई है उसमें, तो तुम्हारा पूरा डाउन हो गया. दैट मीन्स विदिन फर्स्ट 45 मिनट्स तुमने जहाँ 15 क्वेश्चन करने का प्लान किया था, या मैं फिजिक्स कोड ही डालूंगा, तुम्हारे 5 या 6 क्वेश्चन हुए, उसका इम्पैक्ट केमिस्ट्री में होगा, उसका इम्पैक्ट मैथ्स में तो होना नहीं. सो अटेम्प्टिंग द पेपर्स इन द राउंड इज द बेस्ट वे, और आई वुड से दैट्स द स्ट्रैटेजी दैट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेज. कि पहले तुझे जो आ रहा है लेट मी डू. डजंट मैटर ना, ये फर्क थोड़ी पड़ता है कि मैंने टफ क्वेश्चन किया तो भी 40 मार्क्स मिलेंगे, और मैंने इजीएस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तब भी. तुम्हारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और एक्यूरेट करना है. तो फॉर दैट द स्ट्रैटेजी विल. तो अभी अगर बहुत समझ नहीं भी आ रहा होगा, यू कैन नोट डाउन दैट व्हाटएवर शी इज सेइंग, एंड देन यू कैन ट्राई अटेम्प्टिंग एज वी मूव फॉरवर्ड. आई थिंक इन सितंबर अक्टूबर यू गेट वेरी गुड आइडिया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना पड़ता है. आज भी तुम्हें समझ आ ही जाएगा, जेईई का पेपर है, तुम्हें काफी कुछ पता चलेगा. क्लियर? इज दैट क्लियर? दिस स्ट्रैटेजी समझा कि नहीं समझी? Can you repeat what I said? You want her to repeat? Yeah. You want her to repeat? Okay, she'll repeat it for you. Can you tell me the timeline I said? CET. That's fine. For NEET, so it is even tough. For NEET, so you need to make sure that you are attempting questions. One question 55 seconds. Because you have 180 minutes, na? And 180 questions are there. In JEE, there are 75 questions. Yes. तो तुम्हें तो और भी ज़्यादा precise होना पड़ेगा. Yes, can anybody repeat what she said with the time? Yes, Jyotika. 30 minutes chemistry, 30 minutes physics, 1 hour maths, and the rest 1 hour computer. And how many questions per hour? For chemistry 15 to 20, for physics 15 to 20 maths.
Okay. Did you get it now? Who had a doubt? Who had a doubt? Did you get it or should I repeat? Anybody have a doubt? Please try this in today's paper and try moving between the sections. And 3 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन पे रुकना ही नहीं है. आ रहा है 1 मिनट में समझ जाता है कि अपने बस का है कि नहीं. Then move to the next question. 3 minutes per question you can give and then move. Okay, next I think I want to ask you कि तुमको अभी तक 2 ही महीने हुए बट स्टिल क्या गलतियाँ हो रही है या क्या होगी? What do you think? What are the common mistakes that you do? और in 2 months what do you think? Think, ये mistakes कर दी कि नहीं करना चाहिए था. Yes, कर दी. Calculation mistake. Calculation mistake का मतलब और भी थोड़ी होती है. Okay. अभी तो बड़ा आया ही नहीं केमिस्ट्री में कुछ. सब बेसिक कंसेप्ट पे तो हो गई. Yes. What are the common mistakes? क्या लग रहा है? Procrastination. Superb. Who said that? Superb. Anyone else? That will remain for 2 years now if you don't take care of it. कोई गलती नहीं की, बराबर चल रहा है. You said you didn't do mains questions. You have not made short notes. What do you think are the mistakes you're doing? I think they haven't started studying yet. That's the biggest mistake I feel. Someone is saying something. No? Okay. So I'll tell you what were my mistakes in these, not my mistakes, but common mistakes in these 2 years. First is, 11th is the most important thing in your JEE preparation. लोग कहते हैं कि 12th में कम बैक मारेंगे, बट एक बार जब 11th का बैकलॉग हो जाता है ना, then it's very difficult to come back. I think Kritnu ma'am knows a student who tried so hard in 12th to 11th पूरी बर्बाद थी, पर 12th में ट्राई किया कि वापस कम बैक करे, but it's not possible because 11th and 12th are totally connected. The strongest thing that you can do for your JEE preparation is make your 11th extremely strong. कोई भी चैप्टर मत छोड़ो, टाइम ही टाइम है अभी तुम्हारे पास. हर चैप्टर के लिए तुम्हारे पास 3 से ज़्यादा वीक है. वो जो अपन ने कॉलम्स बनाए थे ना, सारे ग्रीन होने चाहिए पहले चैप्टर्स के. That's the first mistake. Don't take 11th lightly. Second mistake is procrastination. ये मतलब I also used to procrastinate YouTube, Insta. I uninstalled Insta for like half of 11th and 12th. It's your choice if you don't want to or want to. I set a time limit on YouTube because you can't delete it from your phone, unfortunately. So I set a time limit, 15 मिनट या आधा घंटा, जितना भी लग रहा है. And I made a new account because the feed in my previous account was really good. And it was really tempting to scroll. So I made a new account which I used, and that way इतना distraction नहीं होता था. अगर होता भी है कि यार I want to just doom scroll, then do it at night when you have done with your studies. जैसे 11 बजे समझो पढ़ाई, चलो 8 बजे तुम्हारी पढ़ाई हो गई, and then maybe at night तुम्हारी नींद कुर्बान करके you do time pass and procrastinate, but don't waste your day time, the most critical part. अगर आधा घंटा भी टाइम पास किया, फिर वो इतना मोमेंटम डिफिकल्ट होता है to gain throughout the day, and the whole day is gone. So if you tend to procrastinate, try to do it in the most unproductive part of your day. Next thing is not giving tests regularly. Give your tests and DPPs very seriously. मैं मतलब तुम 150 क्वेश्चंस यू सॉल्व करो, तुमको पता भी नहीं चल रहा है इधर के इधर. सो अगर वो तुमने एनालाइज कर लिया घर जाके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में, कि यार जैसे मैथ्स में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी है. मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, LPP, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? LPP फॉर CET, सीक्वेंस सीरीज फॉर मेंस, राइट? सो मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है पैटर्न रिकग्निशन. तुमने देखा होगा सीक्वेंस सीरीज इज नॉट लाइक 10th CBSE सीक्वेंस सीरीज. You remember?
10th में था तुम लोग को सीक्वेंस सीरीज? नहीं था, ओके। They had they had AP, हाँ राइट। तो मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैटर्न रिकग्निशन। तुमको मैथ्स के एक चैप्टर में, चलो ट्रिग्नोमेट्री पकड़े, उसमें 20 से 30 पैटर्न होंगे। एक सर्टेन टाइप का मैनिपुलेशन करके यू मूव फॉरवर्ड। कैन यू रिलेट विथ व्हाट आई एम सेइंग? In a particular math chapter like trigonometry, there are 20 to 30 patterns that you need to recognize and then manipulate to get the answer. वो अगर तुमने DPP में चुन चुन के निकाले कि यार ये कुछ अलग पैटर्न है, वो लिख के लिया, every time you give a DPP you will find a different question, नया पैटर्न दिखा, लिख के लो उसको। Are you getting that? In the end तुम like जो top 100 रहते हैं उनको क्लिक होता है, अपने को क्लिक नहीं होता है, तो डॉक्यूमेंट करके चलना पड़ेगा, लिख के लेना पड़ेगा क्या क्या पैटर्न्स है वो। Are you getting that? That's for maths. And physics chemistry के लिए DPPs. DPPs analyze theory. DPPs analyze theory. That's all. नेक्स्ट इज नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस। सिर्फ थियोरी कर रहे हैं, सिर्फ नोट्स लिखे जा रहे हैं, सुंदर बनाए जा रहे हैं नोट्स को, दैट्स अ ब्लंडर। गिव मोर टाइम ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, बिकॉज जेई एक एप्लीकेशन का एग्जाम है, तुमको उधर थियोरी नहीं पूछेंगे, डेफिनेशन नहीं पूछेंगे उधर। Spend more time on problem solving. I want all of you to open your modules and start with mains PYQs. Try to complete 25 questions of the chapters that are done till now. And wasting too much time on theory and notes, no revision. अब no revision जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुमको समझ में आएगा कि जो प्रीवियस चैप्टर्स है उनके लिए इतना टाइम नहीं बच रहा है रिवाइज करने को, भूल रहे हो वो चीज़ें। तो जो मेगा टेस्ट रहेंगे जिनमें पहले का सिलेबस रहेगा, तो मेक श्योर यू रीड दोस चैप्टर्स जो एक्स्ट्रा के डाले गए हैं, एंड उस टेस्ट के बहाने वो रिवाइज होंगे मेगा टेस्ट के बहाने। आर यू गेटिंग इट? मैम, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग फॉर मेगा टेस्ट्स? Usually we will be giving mega test with the gap of 8 days to 15 days. And the syllabus अभी तो just 2 chapters हुए, but जैसे हम लोग सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो it is going to be 5-6 chapter per subject in mega test. In December you might see 90% of 11th will be included in mega test. In 12th standard, one mega test will be entire 11th. And one mega test will be to 12th class syllabus. Then only you will revise ना. So otherwise you will read 11th. पूरा जैसे अभी 9th है ना, 9th पूरा shoot भी आता है, 10th भी आती है तो ये 11th का भी हो जाएगा. We can't afford that. So as we move forward, we will make sure that we will get to mega test syllabus from earlier chapters. वहाँ पे जो भी होएगा उसको लेके जाते हैं mega test. That's fine. And one more thing you will find is the unit test के बाद बड़ा अच्छा है, एक chapter 2 chapter, but mega test will not finish it जाता है. That is expected, but you try to explain to parents why that is happening. कि syllabus जब ज़्यादा है तो tough हो रहा है, पीछे का syllabus है तो point तो मिलता है, and actually plan करो भी. So you get your mega test syllabus 1 week prior. जो अपन ने वीक का शेड्यूल बनाया था ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ ना 2-2 चैप्टर रोज के। सिर्फ थियोरी पढ़ो, क्वेश्चंस तो वैसे ही मेगा टेस्ट में सॉल्व हो रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? बस वीक भर में जो चल रहा है चैप्टर्स उसके साथ 11th के पहले के चैप्टर्स की थियोरी पढ़ ली और टेस्ट के बहाने उसकी सॉल्विंग हो जाएगी। तो दैट्स हाउ यू विल not forget previous ones and keep on track with the current syllabus. Next is, don't go for any reference books right now. I don't think any of you are using reference books right now. Do not use it at this stage. I mean, I started then stopped, then started then stopped. It's no use. Modules are everything. Modules and sir or ma'am notes. That's like enough. And NCERT for chemistry. How many of you have read NCERT for some basic concepts and structure of atom? बाकियों ने नहीं पढ़ी. You haven't read your NCERT. Can you tell me H ये अपने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल्स कैसे रहते हैं? See, 1s
and 2p, or else I'll say 2s and 2p. 2s की एनर्जी क्या है, लाइक n plus l वैल्यू क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है. सम बेसिक कंसेप्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ी है, वो तो हो गया पूरा चैप्टर. So still most of you have not read the NCERT. That's not how it's going to work. You have to read the NCERT for chemistry, especially 12 chapters. जब organic आएगा, inorganic आएगा, ये physical chemistry चल रहा है. Structure of atom, this is physical chemistry. तब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है NCERT की. जैसे 12th में जाओगे तो उसकी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. हर लाइन से क्वेश्चन आता है मेंस में. स्टार्ट रीडिंग योर NCERT. One more point I want to add to that about the reference books. So as you move forward, you will get to know lot of books from your friends. जो क्लास में नहीं है ना, वो बताते जाएंगे, वो बाहर वाले की यहाँ से. और तुमने ऐसी करना नहीं की, मैंने उसकी नहीं की, तुमने इन्होंने नहीं की अभी तक, तो ये होगा. So that's to this point coming up. We don't get back off down by friends. तो बोल रहे हैं ये नहीं क्यों नहीं. सर जो कराएंगे वो मोर देन इनफ है. उनके क्लास के क्वेश्चंस में रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस है, सो यू डोंट हैव टू गो सर्चिंग योरसेल्फ. वो बुक तुम खोलोगे ना, फिजिक्स गैलेक्सी की इतनी जाड़ी किताब, हर चैप्टर के 800 क्वेश्चंस, चक्कर आने लगती है. इट्स नॉट वर्थ इट. जो उसमें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सर क्लास इलस्ट्रेशंस में कवर करते ही है. सो अगर सर ने बोला कि इसका ये कर लो तो कर लो, सर ने बोला एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस कर लो तो कर लो. सम बेसिक कंसेप्ट्स के पीछे के क्वेश्चंस किए किसी ने एनसीईआरटी के, या फिर हाँ स्टेट बोर्ड क्वेश्चंस. यस, जो उसमें के नहीं आए यू हैव टू रीड इट और एटलीस्ट मार्क इट इन योर टेक्स्ट बुक कि उसमें का जो अच्छा क्वेश्चन है वो मार्क करके रखो. And one more important point is don't take break days. Break days means a gap of 5 to 6 days. Don't take a gap of 5 to 6 days between your preparation. वापस मोमेंटम करने को और वापस सारी चीज़ें याद करने को बहुत टाइम जाता है. सपोज अभी तुम्हारा समर ब्रेक तो हो गया, जैसे दिवाली की सपोज. सो ऐसा नहीं कि 5-6 दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे क्योंकि बाद में कुछ याद नहीं आता है. फिर you can take a break of 3 hours on Sunday. That's all right. But don't skip days. Don't let any day go unused. हर दिन कुछ ना कुछ उठाते जाओ, पढ़ते जाओ. नेक्स्ट थिंग, व्हेन यू अभी तो मतलब क्वेश्चंस तुम कर ही नहीं रहे हो, बट अगर करोगे तो फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस. ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के 50 क्वेश्चंस हम किए जा रहे. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. तुमने 30 क्वेश्चन किए, उनको एनालाइज किया, दैट्स इनफ. दैट्स बेटर देन डूइंग 100 क्वेश्चंस एंड नॉट एनालाइजिंग देम. दैट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आइडेंटिफाइंग 20 to 30 पैटर्न्स इन एवरी चैप्टर, ये मैंने बोला मैथ्स के लिए. नेक्स्ट इज टेक DPP सीरियसली. मेक शॉर्ट नोट्स एंड शीट्स. You can't read 70 to 80 pages for every chapter before your mains exam. Decide your study zone or place. How many of you stay back and study here? Only one. Anyone who stays back and studies? No one stays back. Have you seen your seniors? Most of them. मतलब हम जब पढ़ते थे तो हमारा देख देख के वो बैठे. Now it's your chance to sit here and study if you're getting used to the environment here. Because honestly घर पे वो नहीं हो पाता. कोई ना कोई आ रहा है, कोई जा रहा है. And of course you won't feel like studying when you have so many 1,000 better things to do. So I would highly recommend to stay back and study over here 5-6 बजे, then go home. That's the best way to keep yourself consistent. मैं बताऊँ तो मैं यहाँ पढ़ती थी हॉल में. ये मेरा टेबल था, चेयर था, और आई यूज्ड टू क्लोज द डोर एंड इट वाज माय स्टडी जोन. ज़्यादा कोई अंदर बाहर नहीं आता था, फुल फोकस था. या कभी कभी क्लासरूम में भी हम बैठते थे तो एक जो डिलेमा रहता है कि यार पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, जो घर पे होता है वो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि तुमको
दिख रहा है कि सब पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ में. I mean, if you're really serious about JEE, then you got to start doing that. अगर tier 3 कॉलेज चाहिए तो फिर भाई नहीं भी पढ़ा तो चलता है, tier 3 तो मिल ही जाएगा. You know what a tier 3 college is? Like the worst of worst college that you can get. वो तो मिल जाएगा, पैसे से मिल जाएगा वो. अगर tier 1 colleges चाहिए, IITs, NITs, triple IITs, BITS, then you got to work hard. Then you really got to work hard. If you go in a tier 3 college, मुश्किल से 5 to 6 lakhs per annum you get salary. 5 से 6 लाख साल भर के. And वही अगर तुम NITs में भी गए तो you get 25 to 30 LPA per annum. बस थोड़ी ये 2 साल मेहनत करके. This investment is so huge. It's such a golden opportunity. तुमने ये 2 साल मेहनत कर दी ना, तुम इतने आगे जाओगे लाइफ में. You get such a great head start because of JEE. Like your peers, you will leave them so behind. It's not money. It's about the opportunities in college. तुम घर पे बैठे हो, हॉस्टल में नहीं रहते, कभी लेक्चर्स के लिए जा रहे हो नहीं जा रहे हो, उधर चाय की टपरी पे पड़े हो. दैट हैपन्स इन अ tier 3 कॉलेज. चाहिए तो एक बार DY पाटिल जाके देख के आओ. रियली विजिट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. वो रिजल्ट के दिन नहीं समझता है कि गंदे मार्क्स आए. JEE मेंस के दिन जब परसेंटाइल आएगी तब इतना हिट नहीं होता है. जब जोसा के राउंड्स चलते हैं ना और कुछ हाथ पैर आता नहीं है हाथ में, तब लगता है कि यार साला कुछ मिल ही नहीं रहा अपने को, कहाँ जाएंगे, तब हिट होगा तुमको. Now we are seeing students जिनको 2 साल बोल के थक गए और जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया, now they are coming and saying you know कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा. मतलब PCC और जैसा कॉलेज में नहीं मिल रहा, तो टॉप 7 में अगर पकड़े फ्लोर्स वो भी नहीं मिल रहा. पुणे के बाहर कोई गाँव में छोटा सा इंजीनियरिंग मिल रहा. बिलीव मी, इंजीनियरिंग सबको मिल जाएगा. मतलब तुझे सीटी नहीं दी ना तब भी इंजीनियरिंग के एडमिशन देने वाले कॉलेजेस में देर आर. पर वहाँ जाके कुछ फायदा होगा क्या? कुछ फायदा नहीं. मतलब 4 साल के इंजीनियरिंग के डिग्री के बाद भी यहीं पे घूमते नहीं होंगे. That's the reality. That's the real reality. Next thing, track your preparation, syllabus and set weekly targets. Syllabus का पिक्चर जैसे हमने पहले बात की कि पिक्चर्स लगाओ इसके the things to do for every chapter. syllabus के प्रिंट आउट्स लो, एटलीस्ट ऑफिशियल syllabus तो देख लो अभी. एंड तुम्हारा वीकली टारगेट तुमको एक्सेल में करना है, कोई टू डू लिस्ट बनानी है, नोटबुक में बनाना है. उसके लिए देन मेक A3 फॉर्मूला शीट्स. Test analysis is a skill. We talked about that. Build a knack of finding the easy and doable questions when you're studying. When you're studying, you try to find difficult concepts and all that. But तुम जब पेपर देते हो तो तुम्हारे easy और doable questions तुमने निकालने पड़ते हैं. NCERT is the Bible of chemistry. And mains में सबसे difficult कोई subject है तो वो है maths. रीज़न बीइंग कि एडवांस के लेवल का आता है मेंस में. तो अभी से यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. मैम दे आर सेइंग दे हैवंट डन मेंस PYQs. मेंस PYQ स्टिल नाउ. किसने नहीं किए निकालो वो बोलो. अच्छा चलो हाथ बड़ा करो. किसने नहीं किए? खुद से नहीं बस मैम ने जो करा है उतना ही. वो है कि मैम इनको चम्मच से खिलाएगी तो इनको खाना है ना. क्या बोला है? मुझसे होमवर्क में लेती हूँ मैं, वो इनका गूगल करता है. ये नहीं करते हैं. Okay. ये कि नहीं दिया. मैं अभी होमवर्क की लिस्ट निकलवाती हूँ रिसेप्शन से. और उसके बाद डाउट्स ही होते हैं क्योंकि हम ट्राई नहीं करते. आज अच्छा वीडियो बैच आज करवाएं जी कि एक मीट का क्वेश्चन और एक पेज का क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37 पेज 71 करवाया कि नहीं? जितना आपने करवाया नहीं करवाया. That's the problem. तो मैम वो क्वेश्चन लेती है जो टफ है, जो इजी
तुम जेई का ये सुन के ही उस क्वेश्चन को टच नहीं करते हो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ जेई मेंस, इट्स वेरी डूएबल। मैथ्स के लिए कभी भी थोड़ा डर लगता है, बट फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए स्टार्ट अटेम्प्टिंग मेंस PYQs and be very active during revise fast and rank booster. Should I tell them about revise fast? Okay, maybe during orientations and all. Okay, I just wanted to show you my JEE mains के 2 week पहले का मेरा जो schedule था, ये था। We were giving 3 hours papers, 3 hours analyzing them. Rest part of the day जो शीट्स बनाई थी, जो दिखाई थी तुमको, उसका रट्टा मारना, जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए 70-80 पेजेस के जो शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको वापस पढ़ना, ये चल रहा है। तो अभी से डोंट क्राई नाउ, इट्स गोइंग टू गेट टफ। Do you see the timeline given up there? Can you read them? 9 to 8 9 AM to 11. 11 PM. Okay, I'll switch to the next slide. One last important thing that I would say, कि from now till September, you have time to complete your 11th and 12th standard syllabus with minimum obstructions. अभी कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल्स नहीं है, बोर्ड्स नहीं है, कोई बीच में एग्ज़ाम नहीं आ रही है, तुम्हारे HSC के बोर्ड्स नहीं है, CBSE के बोर्ड्स नहीं है, there is nothing that's stopping you back. So try to utilize your time till September. From October to December, you will have your rank booster. Rank booster जैसे मैंने बताया, PYQ solving sessions रहेंगे, where you stay back over here and solve. Before that, Jan में you will have revise fast, where you will be revising your 11th standard syllabus. December, you will be giving your mock tests for JEE Mains first attempt. Jan में you can target 97 percentile above. From Feb, March and April, actually just Feb, you will be preparing for your boards. Jan में तुम्हारे कॉलेज के प्रैक्टिकल्स रहेंगे। फेब में रिजल्ट आया हुआ रहेगा मेंस का, बोर्ड की तैयारी चालू रहेगी। यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस और CET और बिटसैट, एंड देन मई में योर जर्नी विल एंड। सो लास्ट में इट्स गोइंग टू गेट वेरी हेक्टिक एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। टाइम नहीं मिलेगा, इतनी चीज़ें मैनेज करनी होगी। So try and utilize this time, 11th, 12th till September, to maximize your subject coverage. That is till 2027 September. And this year the news is CET will be in December for 12th standard. So for all you, CET will be in December, next year December, and then JEE will start. I think we can end it, yes. So this is the journey that she had for entire 2 years. नहीं, I think इसलिए हो जाएगा, इसमें आवाज़ आ रही है शायद। आ रही है, ओके। दिखा रही हूँ। So this is the consistency, I would say. You can see all pictures in the sitting area. So start making your videos, provided you will sit. So, any other question apart from what she explained? कुछ रह गया?
start documenting your journey also. पढ़ने बैठते हो तो you can like take a short video ताकि last में जब चीज़ें hard होने लगती है ना, so you can go back and see. Yes. And good that you got this insight at the very early stage of 11. You have to go 20 months from now, but you get to know कि जर्नी कैसी रहने वाली है, कितना है आगे करने का, और अभी से करोगे तो easy रहेगा. I think you have really loved to get the insight and all the details कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म होगा. Okay, so thanks everyone for joining this. If you have any particular questions or anything, then we can take later. I think Pivot Saudagar branch, you can just leave first. You can have your lunch and get ready for the paper. And B1 and B2 batches, I think you're done for the day. So once they are settled down, you can leave. Okay? Yes. हाँ अच्छा फ़ोन से करना है.